Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we are discussing another topic of routing protocols. In previous lecture, we have talked about distance vector routing protocol, and we have discussed the implementation of a distance vector routing protocol, which is a routing information protocol. Moving forward in that direction, second routing protocol is link state routing protocol. Link state routing protocol is also a routing protocol, but let me remind you the previous in previous lecture we have talked about interdomain and intradomain routing. We have discussed interdomain and intradomain routing. I have told you that autonomous systems are divided into interdomain and intra. The whole internet is divided into autonomous areas. Okay. Let's suppose this is an autonomous area under the control of an administrator. This is another area in the control of another administrator. This is another area in the control of another administrator. Okay. Now, this is called one autonomous system. This is called another autonomous system. And this is called another autonomous system. Now I have told you about interdomain routing and intradomain routing. If router in a specific autonomous system communicate each other, routers in a specific autonomous system communicate each other is called intradomain routing. Routers in a specific area communicating each other is called intradomain routing. Now routers in this area communicate each other, this is called intradomain routing. But now if router of this area communicate with the router of this area is called interdomain routing. We have discussed that already. Now there are two types of protocols. One is intradomain routing and the second one is interdomain routing. We have started intradomain routing. First, we have discussed distance vector routing in previous lecture. Distance vector routing in previous lecture. Today, we will discuss link state routing. As I have already told you that there are different types of protocols. Routing protocol are categorized into intradomain and interdomain routing. We have discussed intradomain routing. Then we have discussed distance vector routing, which is implemented through RIP. Today we will be discussing link state routing protocols. These two are somehow similar but have subtle differences also. This is for intradomain routing. After this we will be studying interdomain routing, which is path vector routing is the protocol, basic protocol, and BGP is its implemented protocol. So here we are starting link state routing protocol. लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल बिल्कुल उसी तरह है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की तरह है, लेकिन लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में जो मेन बात है वो लिंक स्टेट है। लिंक स्टेट हमें क्या बताता है? इसमें जो लिंक स्टेट वर्ड है ये हमें बताता है कि इसमें टाइप ऑफ कनेक्टिविटी क्या है, इसकी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट या मेट्रिक, एंड कंडीशन ऑफ द लिंक। कंडीशन ऑफ द लिंक की मतलब लिंक अप है या डाउन है। तो इसमें ये जो स्टेट वर्ड है, ये स्टेट हमें ये बताता है कि स्टेट ऑफ द कनेक्शन, किस कनेक्शन की टाइप कौन सी है, मतलब ये पॉइंट टू पॉइंट है, मल्टी पॉइंट है, स्टब है या ट्रांजिएंट है। ठीक है, इसकी कंडीशन क्या है, अप है या डाउन है, और साथ में ये भी बताता है कि इसकी कॉस्ट क्या है। ठीक है, तो इसलिए इसको लिंक स्टेट राउटिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें लिंक की जो स्टेट है वो बताया जाता है। ठीक है, पिछले उसमें हमने बात की थी कि मतलब राउटिंग प्रोटोकॉल, राउटर्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अपनी मौजूदगी के बारे में बताते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज ये एक राउटर है
अब ये मुख्तलिफ किस्म के राउटर एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर है, तो ये जो राउटर है ये इसके राउटर के साथ कौन कौन से नोड कनेक्टेड है, ये इस नोड को भी बताएगा, इस नोड को भी बताएगा, इस नोड को भी बताएगा कि मैं कौन कौन से राउटर्स को एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये उसमें हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में। आज हम लिंक स्टेट राउटिंग में इसको डिस्कस करते हैं। लिंक स्टेट राउटिंग और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में फर्क ये है कि लिंक स्टेट में जो तरीक़ेकार है राउटिंग टेबल बनाने का वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जो हमारा तरीक़ेकार था डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के पर राउटिंग टेबल बनाने का वो थोड़ा सिंपल था, उसमें मतलब इनएफिशिएंसी ज्यादा थी। ये जो लिंक स्टेट राउटिंग है ये जो राउटिंग टेबल बनाता है, तो इस राउटिंग टेबल को बनाने के लिए एक एफिशिएंट एल्गोरिदम को यूज करता है। वो उस एल्गोरिदम का नाम है डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम, डाइक्स्ट्रा या कुछ लोग इसको डिजिक्स्ट्रा भी कहते हैं। डिजिक्स्ट्रा जो एल्गोरिदम है ये एक शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करता है। तो यहाँ पर ये प्रोटोकॉल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करने के लिए एल्गोरिदम यूज करता है, ठीक है। तो ये जो एक ऑटोनोमस सिस्टम दिखाया गया है, इस ऑटोनोमस सिस्टम में 5 राउटर्स हैं और हर राउटिंग का एक स्टेबल मतलब हर राउटर का स्टेबल राउटिंग टेबल बताया गया है, ठीक है। अब ये इनिशियली क्या होता है, इनिशियली तो एक दूसरे को पता नहीं होता कि मतलब इसमें क्या है। तो इनिशियली इसका स्टेट, हर राउटर का स्टेट इस तरह होता है, हर राउटर को सिर्फ अपना पता होता है कि मैं किस किस नोड को एक्सेस कर सकता हूँ। ये राउटर ए है, ये नोड 3 को एक्सेस कर सकता है, नोड सी को एक्सेस कर नोड डी को एक्सेस कर सकता है, नोड सी को एक्सेस कर सकता है और नोड बी को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। अब इनडायरेक्टली ये नोड ए जो है ये ई को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि इस नोड ए को ई का पता ही नहीं है कि नोड ई नेटवर्क में है कि नहीं है। अब जब ये राउटर्स एक दूसरे के साथ राउटिंग टेबल शेयर करेंगे, तब इस राउटर ए को पता चलेगा कि मैं नोड ई को वाया सी एक्सेस कर सकता हूं, ठीक है। ये बात तो उधर भी हमने डिस्कस की थी। उधर जो मैट्रिक था वो लिंक को हमने वो किया था, लिंक पे लिखा होता था। इधर जो मैट्रिक है वो राउटर के साथ लिखा हुआ है, क्योंकि राउटर लिंक के स्टेट को डिसाइड करता है, ठीक है। एक राउटर मतलब ये दोनों राउटर जो है ये म्यूचुअल कंसेंसस से या जो यूजर है वो इसमें बताएगा कि इस लिंक की मैट्रिक या कॉस्ट क्या होगी, ठीक है। तो इसलिए राउटर पे ये इंफॉर्मेशन स्टोर हुआ है। अच्छा, जब राउटर राउटिंग टेबल जो बनता है वो 4 स्टेप्स में बनता है। राउटिंग टेबल की 4 स्टेप्स हैं। ये जो 4 स्टेप्स है इसमें ये जो 4 स्टेप्स है इसमें सबसे पहले है क्रिएशन ऑफ एलएसपी। क्रिएशन ऑफ एलएसपी, एलएसपी क्या है? एलएसपी इज लिंक स्टेट पैकेट। ये राउटर जो है, ये राउटर क्या करेगा, ये अपनी लिंक स्टेट को क्रिएट करेगा कि मैं कौन कौन से राउटर को एक्सेस कर सकता हूं, ठीक है। एक पैकेट बनाएगा और इसमें डालेगा, मतलब इस लिंक स्टेट पैकेट में बहुत सारा इंफॉर्मेशन हो सकता है। उसमें तकरीबन 5 किस्म की इंफॉर्मेशन है कि मतलब राउटर की आईडी है, लिंक स्टेट पैकेट का आइडेंटिफिकेशन नंबर है और इसकी एज है, ठीक है। सीरियल नंबर होगा और इसकी एज होगी कि मतलब कितने टाइम पहले ये पैकेट बना है, ठीक है। तो ये जब अपना पैकेट बनाता है लिंक स्टेट पैकेट, उसमें सारे जितनी भी डायरेक्ट लिंक्स होंगे वो दर्ज होंगे। तो सबसे पहले राउटर क्या करता है, लिंक स्टेट पैकेट बनाता है, एलएसपी बनाती है, ठीक है। एलएसपी बनाने के बाद क्या करेगा, फ्लडिंग ऑफ एलएसपी। फ्लडिंग ऑफ एलएसपी क्या होता है कि इस एलएसपी को दूसरे राउटर तक पहुंचाना। मिसाल के तौर पर ये इस राउटर ने अपना एलएसपी क्रिएट कर दिया, लिंक स्टेट पैकेट बना दिया, तो ये इसको भी शेयर करेगा, इसको भी शेयर करेगा, इसको भी शेयर करेगा। अब ये राउटर क्या करेगा, आगे इस एलएसपी को देखेगा कि ये न्यू एलएसपी है या ओल्ड एलएसपी है। अगर ओल्ड एलएसपी है तो ये इसको डिस्कार्ड करेगा। ऐसे भी हो सकता है, लेट सपोज कि 5 मिनट पहले एक एलएसपी पैकेट इस राउटर ए ने इसको भेजा हो और उसके बाद दूसरा पैकेट भी भेजा हो, लेकिन वो ओल्ड पैकेट क्या हो,
इसको रिसीव नहीं हुआ और वो न्यू लेट सपोज 2 मिनट पहले वाला पैकेट इसको रिसीव हुआ है और उसके बाद नेटवर्क में कुछ इशू या कंजेशन की वजह से 5 मिनट पहले वाला पैकेट अभी रिसीव हुआ है। तो इसको पता चल गया एज से कि मतलब ये जो अभी मुझे पैकेट रिसीव हुआ है ये पुराना वाला है, तो अगर ये पुराना वाला पैकेट है तो ये नोड सी इसको डिस्कार्ड करेगा, मतलब डिलीट करेगा। लेकिन अगर ये इस पैकेट को देखेगा, सी ने देख लिया कि ये पैकेट जो है ये न्यू पैकेट है, तो ये क्या करेगा, इसको आगे फॉरवर्ड करेगा सारे राउटर्स को सिवाय इस ए को, क्योंकि ए से पैकेट आया है, ए को वापस नहीं भेजेगा, बाकी सारे राउटर्स को इसको फॉरवर्ड करेगा। तो इसको कहते हैं फ्लडिंग ऑफ एलएसपी। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि राउटर अपना एलएसपी क्रिएट करता है, दूसरे स्टेप में एलएसपी को फ्लड किया जाता है, मतलब आगे फॉरवर्ड किया जाता है। थर्ड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। थर्ड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। थर्ड स्टेप में हर राउटर क्या करेगा, मतलब लेट सपोज इस राउटर ने इसको एलएसपी भेज दिया है, अब ये क्या करेगा, इस पैकेट को तो आगे भी पहुंचाएगा, अब इस पैकेट के बेस पे शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करेगा। मतलब ये राउटर क्या करेगा, अब शॉर्टेस्ट पाथ क्रिएट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैकेट। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ कैसे कैलकुलेट करेगा, इसलिए मैंने बता दिया कि वो डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम को यूज करता है। डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम के थ्रू ये हर राउटर क्या करता है, दूसरे राउटर तक शॉर्टेस्ट पाथ, लेट सपोज ये ए है, ए ई को एक्सेस कर सकता है, तो ई को इस सी के थ्रू भी एक्सेस कर सकता है, ए जो है ई को बी के थ्रू भी एक्सेस कर सकता है। लेकिन जब ये ए सी के थ्रू एक्सेस करेगा तो ये 6 मैट्रिक्स, इसकी कॉस्ट क्या होगी, 2 जमा 4 6 होगी। लेकिन अगर ये ए बी के थ्रू एक्सेस करे तो 5 जमा 3 8 इसकी कॉस्ट होगी। तो ए जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ को कैलकुलेट करेगा और इसके लिए डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम को यूज करता है। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, फोर्थ स्टेप में ये राउटर्स क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में कैलकुलेट करेंगे फॉर्मेशन ऑफ राउटिंग टेबल। फोर्थ स्टेप में फिर राउटिंग टेबल को राउटिंग टेबल क्रिएट करेंगे। अब हम डिस्कस करना चाहते हैं कि मतलब ये डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम यूज कैसे होता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम जो है वो कैसे यूज होता है। तो ये इसके लिए सबसे पहले हम 2 लिस्ट बनाते हैं, एक को कहते हैं परमानेंट लिस्ट, एक को कहते हैं टेंटेटिव लिस्ट। पर सबसे पहले इसको शॉर्टेस्ट पाथ ट्री कहते हैं। बेसिकली क्रिएशन ऑफ एलएसपी जो है इसके बाद अच्छा, ये जो इससे पहले एक बात याद आ गई कि हमने पिछले एल्गोरिथम में बात की थी कि मतलब ये राउटर्स एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन कब शेयर करते हैं। तो इधर हमने बात की थी, एक को हमने कहा था ट्रिगर और एक को हमने कहा था पीरियाडिक बेस पे। ट्रिगर बेस पे मतलब जब जिस राउटर के लिंक में चेंज आ जाए, लेट सपोज राउटर ए का कनेक्शन डी से अगर कट जाए तो फिर राउटर ए ने सारे राउटर्स को इन्फॉर्म करना है कि अब मैं डी को एक्सेस नहीं कर सकता। इसको कहते हैं ट्रिगर्ड शेयरिंग। दूसरी जो शेयरिंग हमने बात की थी कि पीरियाडिक, एक खास पीरियड के बाद राउटर्स एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं कि मेरी राउटिंग टेबल क्या है, मतलब मैं कौन कौन से नोड को एक्सेस कर सकता हूँ। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में जो हमने बात की थी, कुछ सेकंड्स हमने कहा था कि मतलब इतने सेकंड्स बाद क्या होगा, राउटिंग टेबल एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेगी। लेकिन लिंक स्टेट राउटिंग में जो पीरियड है वो 60 मिनट से लेकर 2 घंटे तक है। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा, मतलब ये इसका मकसद ये है, ये इतना ज्यादा पीरियड इसलिए रहता है कि अगर राउटर्स में कोई चेंजेस नहीं हो रही तो फिर राउटिंग टेबल को शेयर करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इस राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन शेयर करने से भी नेटवर्क पर रश आ सकता है, नेटवर्क पर कंजेशन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, कंजेशन मतलब रश ज्यादा हो सकता है, ट्रैफिक बढ़ जाता है। ठीक है,
अच्छा, मैं डिस्कस कर रहा था डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम। डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम बेसिकली शॉर्टेस्ट पाथ ट्री है। ये क्या है? एक शॉर्टेस्ट पाथ ट्री है। इस ट्री की मदद से क्या होता है, सारे नोड्स क्या करते हैं, एक शॉर्टेस्ट पाथ क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम राउटर ए के लिए राउटिंग टेबल बनाते हैं। तो इसका जो एल्गोरिथम है वो कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम राउटर ए डालेंगे और हम बताएंगे कि राउटर ए को एक्सेस कर सकता है थ्रू कॉस्ट 0। ठीक है, ये हमने टेंटेटिव लिस्ट में डाल दिया। अब हम इस लिस्ट में से, टेंटेटिव लिस्ट में से जो जो नोड्स पड़े होंगे उसमें से सबसे कम कॉस्ट वाले नोड को क्या करेंगे, यहाँ शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं ए को शिफ्ट कर रहा हूँ जो सबसे कम कॉस्ट वाला है। सिर्फ एक ही है और वो सबसे कम कॉस्ट वाला है। ठीक है, और यहां से मैं क्या करता हूं, इसको रिमूव करता हूं। अब मैं क्या करूंगा, ए के साथ जो नोड्स कनेक्टेड हैं डायरेक्टली, वो सारे नोड्स में कॉस्ट के साथ टेंटेटिव लिस्ट में ऐड करूंगा। ए के साथ जो कनेक्टेड है, तो ए के साथ कनेक्टेड है बी विथ कॉस्ट 5, सी कनेक्टेड है विथ कॉस्ट 2 और बी के साथ कनेक्टेड है डी विथ कॉस्ट 3। ठीक है, अब मेरे टेंटेटिव लिस्ट में वो नोड्स आ गए जो ए के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है और उसकी कॉस्ट भी। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से सबसे जो जो इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू वाला है वो यहां से हटा के यहां ले आऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं डालूंगा सी विथ कॉस्ट 2 और मैं क्या करूंगा, अब यहां पर सी को हटा दूंगा क्योंकि सी तो प्रोसेस हो गया। अब ये सी यहां से कट जाएगा और सी के साथ जो डायरेक्ट कनेक्टेड नोड्स हैं वो मैं डालूंगा। लेकिन मैं ये कॉस्ट जब डालता हूं तो इसके साथ ये ए से सी तक जो कॉस्ट है वो भी ऐड करूंगा। ठीक है, तो अब सिर्फ एक ही नोड है जो सी के साथ अनप्रोसेस्ड नोड, सिर्फ एक ई है। सिर्फ ई जो है ये अब अनप्रोसेस्ड नोड है। बाकी बी जो है, बी भी सी को एक्सेस कर सकता है लेकिन सी ऑलरेडी लिस्ट में मौजूद है। ठीक है, सी जो है वो कॉस्ट 5 के साथ मौजूद है। अगर मैं सी के थ्रू इसको डालूंगा, ये तो ऑलरेडी प्रोसेस भी है और इसकी कॉस्ट फिर कितनी बनती है, 2 और 4 6 बनती है और इससे जो 5 वाली कॉस्ट है ये कम है। तो इसलिए मैं बी को नहीं डाल रहा, मैं सिर्फ ई को डाल रहा हूँ। ठीक है, ई सिर्फ अनप्रोसेस्ड नोड है तो मैं ई को डालता हूँ विद कॉस्ट 2 + 4 6। ठीक है, अब मेरा परमानेंट लिस्ट में सी भी आ गया। अब इस लिस्ट में मैं देखूंगा कि सबसे कम कौन सा वाला है, डी है, नोड डी, और इसकी कॉस्ट 3 है। और ये जो है, जब डी में इधर परमानेंट में डालूंगा, जब डी जो है वो परमानेंट में आ जाएगा इसकी अपनी कॉस्ट के साथ, तो मैं देखूंगा कि मैं ये देखूंगा कि डी के साथ कौन से नोड कनेक्टेड है जो कि अनप्रोसेस्ड है। तो मैं यहाँ आके देखूंगा तो डी के साथ कोई नोड भी ऐसा कनेक्टेड नहीं है जो अनप्रोसेस्ड है। तो मतलब यहाँ पर से सिर्फ डी परमानेंट लिस्ट में शिफ्ट हो गया। अब मैं यहाँ पर देखूंगा कि इन दोनों में सबसे लीस्ट कास्ट वाला कौन सा है, वो बी है। तो बी को मैं यहाँ से हटा के परमानेंट लिस्ट में ऐड करूंगा with its cost 5। अब मैं देखूंगा कि B के साथ ऐसे कौन से नोड कनेक्टेड है जो कि अनप्रोसेस्ड है। तो B के साथ C कनेक्टेड है जो कि वो भी प्रोसेस्ड हो चुका है, B के साथ E कनेक्टेड है वो भी प्रोसेस हो चुका है। तो अब न्यू नोड डालने की जरूरत नहीं है। अब मैं आऊंगा लास्ट, इसमें बचता है नोड E। नोड E में देखूंगा सबसे पहले तो मैं नोड E को यहां से शिफ्ट करके नोड E को मैं ले आऊंगा इधर with its cost 6
और मैं देखूंगा कि नोड ई के साथ ऐसे कौन से नोड कनेक्टेड है जो कि अनप्रोसेस है। नोड ई के साथ बी कनेक्टेड है, वो भी प्रोसेस हो चुका है। नोड बी ई के साथ सी भी कनेक्टेड है, लेकिन वो भी प्रोसेस हो चुका है। तो इस तरह मेरा वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, राउटर ए के लिए जो मतलब जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब इसके आगे मतलब मेरा राउटिंग टेबल मैं बनाऊंगा। अच्छा, ये जो डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम फ्लो चार्ट के थ्रू भी बनाया गया है। डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम जो है इसमें स्टार्ट करते हैं सेट रूट टू लोकल नोड एंड मूव इट टू टेंटेटिव लिस्ट। सबसे पहले हम नोड ए को टेंटेटिव में डालते हैं, फिर उसके बाद अगर टेंटेटिव लिस्ट एम्प्टी है तो फिर हम स्टाफ करेंगे, लेकिन अगर एम्प्टी नहीं है, उसमें अगर कुछ नोड है तो इस उन नोड में से सबसे स्मॉलेस्ट नोड को हम मूव करेंगे परमानेंट लिस्ट में, और उसके जो अनप्रोसेस्ड नेबर होंगे उसको हम मूव करेंगे, उन नोड्स को हम मूव करेंगे टेंटेटिव लिस्ट में। ये सारी कहानी मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा दिया। तो इस तरह ये भी एक शॉर्टेस्ट पाथ ट्री के थ्रू में बनाया है। सबसे पहले रूट नोड ए को ले लो, इसके डायरेक्ट कनेक्टेड नोड्स को डालो। ठीक है, अब बी भी प्रोसेस हो गया, लेट्स सपोज इसके बाद जो सबसे शॉर्टेस्ट वाला है वो 2 है, सी है नोड है विद कॉस्ट 2, तो सी को हमने मतलब शामिल कर दिया। ठीक है, और उसका जो डायरेक्ट कनेक्टेड नोड ई है वो भी हमने शामिल कर दिया। अब सी भी प्रोसेस हो गया, बी भी प्रोसेस हो गया, इस स्टेप में सी प्रोसेस हो गया। अब डी भी प्रोसेस हो गया क्योंकि उसके पास फर्दर कोई अनप्रोसेस नोड नहीं है। इसके बाद बी भी प्रोसेस हो गया, इसके पास भी और कोई अनप्रोसेस नोड नहीं है, और उसके बाद ई भी। तो अब ए को ए एक्सेस कर सकता है 5 को, ए एक्सेस करता है सी को, और सी के थ्रू ई को भी एक्सेस कर सकता है। ए जो है वो डी को भी एक्सेस कर सकता है। अच्छा सॉरी, तो इसके बाद जो ये हमारा राउटिंग टेबल बन जाता है कि ए जो है नोड ए को एक्सेस करता है विद कॉस्ट 0, बी को एक्सेस करता है विद कॉस्ट 5, सी को एक्सेस कर सकता है विद कॉस्ट 2, डी को एक्सेस कर सकता है विद कॉस्ट 3, और ई को एक्सेस कर सकता है विद कॉस्ट 6। लेकिन इसमें ए के बाद जो नेक्स्ट है वो नोड सी है, नोड सी के बाद फिर नोड ई आएगा। अच्छा, ये जो हमारा लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है ये इम्प्लीमेंट हुआ है उसमें इम्प्लीमेंट हुआ है OSPF ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट जो है ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, लेकिन इस इसको इम्प्लीमेंट करते हुए कुछ चेंजेस लिंक उसमें की गई है इसके प्रोटोकॉल में। ये जो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में जो चेंजेस की गई है उसमें जो सबसे बड़ी चेंज है, जो बड़ी तब्दीली की गई है, ऑटोनोमस सिस्टम को एक ऑटोनोमस सिस्टम को अंदर फर्दर एरियाज में कन्वर्ट किया हुआ है। एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, और जो एरियाज है ये एरिया आपस में क्या करते हैं, आपस में राउटिंग टेबल्स बनाते हैं, राउटिंग इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। एक एरिया दूसरी एरिया के साथ राउटिंग टेबल डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करता। जब ये राउटर लेट सपोज इस एरिया के अंदर लेट सपोज 100 राउटर है, तो 100 राउटर पहले आपस में राउटिंग टेबल शेयर करेंगे, राउटिंग टेबल बनाएंगे। जब राउटिंग टेबल कनेक्ट कंप्लीट हो जाए वो प्रोसेस, तो फिर इस एरिया ने भी अपना राउटिंग टेबल वो कंप्लीट किया होगा। तो ये जो बीच में एक राउटर लगा होगा उसको इसको बैकबोन कहते हैं। क्या? बैकबोन। तो इस बैकबोन की मदद से फिर क्या करता है, ये एरिया अपना राउटिंग टेबल इस एरिया के साथ शेयर करेगा। ठीक है, तो इससे ये होगा कि नेटवर्क पे मतलब जो ट्रैफिक है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी चेंज जो की है वो एरियाज बनाई गई है। फिर टाइप ऑफ लिंक मैंने बात की थी कि जो हमारा लिंक स्टेट राउटिंग है, स्टेट में 3 बातें हैं कि कंडीशन क्या है लिंक का, लिंक की टाइप कौन सी है, और एक और बात भी मैंने की थी। तो जो लिंक की टाइप है वो 4 किस्म के टाइप्स हैं। पॉइंट टू पॉइंट लिंक हो सकता है, ट्रांजिएंट लिंक हो सकता है, स्टब हो सकता है, और वर्चुअल लिंक हो सकता है। जो पॉइंट टू पॉइंट लिंक है इसमें यह होता है कि एक राउटर एक और राउटर के साथ कनेक्ट होगा, 1 to 1 कम्युनिकेशन है, तो इसको पॉइंट टू पॉइंट लिंक कहा गया है। तो मतलब जो स्टेट हम LSP शेयर करेंगे तो LSP में ये बात होगी कि ये 1 to 1 के लिए है या ट्रांजिएंट के लिए है।
जो दूसरा ट्रांजिएंट लिंक है, ट्रांजिएंट लिंक जो एक सेंडर राउटर होता है, वो जिस लिंक पे पैकेट ट्रांसफर करता है, वो आगे मुख्तलिफ किस्म के एक से ज्यादा राउटर्स को वो पैकेट जाती है। ठीक है, अब इस केस में भी बी सी डी ई को जाती है इस लिंक पे, इस स्टेट में भी ये एक अनरियलिस्टिक सिनेरियो है, इसमें भी जा सकती है, ये एक रियलिस्टिक सिनेरियो है, इसमें भी मतलब एक से ज्यादा राउटर्स को पैकेट जा सकती है। ये अच्छा, ये स्टब जो है, स्टब भी एक स्पेशल किस्म है वन टू वन कम्युनिकेशन की, तो मतलब ये एक स्टब भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, और इसके बाद वर्चुअल लिंक। वर्चुअल लिंक क्या होता है? जब लेट्स सपोज इन दो राउटर के दरमियान अगर ये एक्चुअल कनेक्शन टूट जाए या डिस्कनेक्ट हो जाए, तो जो एडमिन होता है वो इन दोनों के दरमियान में क्या करता है, एक आरजी लिंक बनाता है, उसको वर्चुअल लिंक कहा जाता है। ठीक है, और ये जो एग्जाम्पल है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह है कि ये हमारे पास नेटवर्क्स है, ये हमारे पास राउटर्स है, तो राउटर्स को दिखाया जाता है एक स्क्वायर के थ्रू, और जो नेटवर्क है उसको दिखाया जाता है एक ओवल के थ्रू। ठीक है, तो इस नेटवर्क को ग्राफिकली इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, ये नेटवर्क 1, नेटवर्क 2, बीच में राउटर सी, नेटवर्क 1 बीच में इधर राउटर ए, राउटर बी, इधर राउटर सी, यहाँ पर राउटर डी, और इस बीच में नेटवर्क 3। इस तरह ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ओएसपीएफ, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम का। ठीक है, इसके आगे फिर शुरू होता है पाथ वेक्टर राउटिंग, एक और प्रोटोकॉल है जो कि इंटर डोमेन राउटिंग के लिए है। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। आप लोग इसको बुक में जाके पढ़ें, इसको समझें, और जो भी मसला हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और याद रखें, ये लिंक स्टेट राउटिंग, अच्छा, ओएसपीएफ और आरआईपी और बीजीपी, इसको हम पैकेट ट्रेसर में इम्प्लीमेंट करेंगे, ये हमारे टर्म प्रोजेक्ट्स होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।